Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is order of the matrix. So this topic is very easy. I made it for the children level because students are sometimes confused in calculating order. They are not able to recognize the rows and columns and all that stuff. So we will discuss here that what is the order of the matrix. As we are well known about matrix, matrix is an array in which there are rows and columns. There are numbers which are arranged in rows and columns. So here we have a formula for order of the matrix, which is m by n. So what is m and what is n? What is m and what is n? So m is basically the number of rows present in a matrix. So जब हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो होंगी उनको हम बोलेंगे m, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उनको बोलेंगे हम n. तो अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होती है और उसके अंदर हम रोज़ और कॉलम्स कैसे देखते हैं. तो ऑर्डर बेसिकली हमारे पास होता ही है कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं वो लिख देने हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है उसके अंदर रो क्या है और कॉलम क्या है. अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास ए है विच इज़ अ मैट्रिक्स. So here are 12, 5, 3 and 4. So 12 and 5. 12 and 5 is present in the in which position? In the horizontal position. Likewise 3 and 4 is present in the horizontal position. So the horizontal numbers are called rows. So here the 12 and 5 and 3 and 4 are termed as row. 12 and 5 are present in horizontal and 3 and 4 are present in horizontal. So 12 and 5 is the first row and 3 and 4 is the second row. Now we are coming to the column. What are the columns? Now see 12 and 3 and 5 and 4. What is the position of 12 and 3 and 5 and 4? Basically here 12 and 3 are present in the vertical position. Likewise 5 and 4 is present in the vertical position. So 12 and 3 is a first column and 5 by 4 is the second column. So what we have studied so far, we have studied that 12 and 5 rows are present in the horizontal manner and the columns are present in the vertical manner. So 12 and 5 and 3 and 4, 12 and 5 makes the first row and 3 and 4 makes the second row. So similarly 12 and 3 is the first column and 5 and 4 is the second column. So here is the our first row and here is our second row. So likewise this is the first column here is the first column and here is the second column. So 12 and 3 is the first column and 5 and 4 is the second column. 12 and 5 is the first row and 12 and 3 and 4 is the second row. So what will be the order of this matrix? यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर के अंदर सबसे पहले m लिखते हैं विच इज़ द नंबर ऑफ़ रो, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम. तो हमारे पास यहाँ पे दो रोज़ हैं तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे. इसी तरह से बाय डालेंगे, हाइफन डालने के बाद बाय डालेंगे एंड फिर हाइफन एंड देन हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम विच इज़ 2. सो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ए का 2 by 2 because there are 2 number of rows and 2 number of columns. So यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. अब हम देखेंगे, वी विल कंसिडर सम एग्जाम्पल्स आल्सो. So test yourself.
what is the order. So here f इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है, ठीक है. तो ये एक ही एंट्री जो है ये हमारे पास एक ही कॉलम बना रही है और एक ही रो बना रही है, ठीक है. लाइकवाइज हॉरिजेंटल में भी यही चीज़ प्रेजेंट है और वर्टिकल में भी एक ही चीज़ प्रेजेंट है. तो इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है. ओके, सो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर विल बी 1 1 1 बाय 1. सो नेक्स्ट वन इज जी इज इक्वल टू 8 एंड 0. अब देखा जाए तो हमारे पास ये वर्टिकल ऑर्डर में 8 और 0 दोनों पड़े हुए हैं. तो 8 जो है वो पहली रो बना रही है, 0 जो है वो दूसरी रो बना रही है, ठीक है. तो 8 जो है वो पहली रो होगी और 0 जो है वो दूसरी रो होगी. लेकिन कॉलम कितने होंगे? 8 और 0 मिलके सिर्फ एक कॉलम बना रहे हैं, ठीक है. 8 और 0 जो है 8 फर्स्ट लाइन में 8 आ रहा है और सेकंड लाइन में हमारे पास 0 आ रहा है. तो हॉरिजेंटल में एक 8 प्रेजेंट है और एक 0 प्रेजेंट है. तो 8 विल बी द फर्स्ट रो एंड 0 विल बी द सेकंड रो. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉलम्स, तो कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा क्योंकि हमारे पास और कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं. तो हमारा इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 रोज बाय 1 कॉलम. ओके, तो 2 बाय 1. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आई इज इक्वल टू 7 4 6. अब देखा जाए तो यहाँ पे 7 4 6. अब 7 4 6 हॉरिजेंटल ऑर्डर में है. तो देखा जाए तो ये एक ही रो बन रही है हमारे पास. तो हमारे पास नंबर ऑफ रो जो होगी वो 1 होगी. लेकिन यहाँ पे अगर कॉलम देखा जाए तो 7 का अलग कॉलम है, 4 का एक अलग कॉलम है एंड 6 का एक अलग कॉलम है. तो वर्टिकली 7 अलग से प्रेजेंट है, 4 अलग से प्रेजेंट है और 6 अलग से प्रेजेंट है. तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बनते हैं. ओके, I hope you got my point. Now u. We will talk about u. U is equal to 3 6 9 9 4 1, ठीक है. तो अब देखा जाए तो 3 और 9 जो है वो एक रो है, 6 और 4 जो है वो सेकंड रो है, 9 और 1 जो है वो थर्ड रो है. तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज बनी है? 3 रोज. और कॉलम्स हमारे पास देखा जाए तो 3 6 9 एक कॉलम बना रहा है वर्टिकल में और 9 4 1 जो है वो हमारे पास दूसरा कॉलम बना रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास वर्टिकल में दो कॉलम्स हैं, 3 6 9 और 9 4 1 वर्टिकल में है. ये दोनों कॉलम बना रहे हैं. इस तरह से 3 9 एक हॉरिजेंटल रो है, 6 4 अलग एक हॉरिजेंटल रो है, 9 1 फिर एक हॉरिजेंटल रो है. तो हमारे पास 3 बाई 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 जो हैं वो हमारे पास रोज होगी और 2 जो हैं वो इसके कॉलम्स होंगे. I hope you got my point. So it's a little effort to make you guys understand that what is the order of the matrix. If you have any question, you can ask me in the comment section.